Students, we will see the factors that determine antigenicity or immunogenicity. में ई होगा ना, जेनिसिटी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी तक कि एंटीजन कैन एलिसिट ए correct immune response if it is having the potential of immunogenicity. But the whole antigen is not evoking the immune response basically. See, if this is the immunogen or antigen, this is the size of antigen or shape, इतना बड़ा है अगर ये antigen, then there will be a region or part of the antigen which will be actively involved in evoking the immune response. Not all the parts, but certain regions of these antigens, different antigens can function as antigenic determinant. Basically, these are epitopes or antigenic determinant. Okay, क्योंकि पूरा का पूरा एंटीजन is not taking part in evoking immune response, but this antigen should be having high molecular weight. तो सिर्फ अगर हम यहाँ से एपिटोप को चॉप आउट कर दें, चॉप ऑफ कर दें यहाँ से, और सिर्फ इस रीजन को इफ यू गिव राइज टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी और if you test for immunogenicity, then this epitope might have lost because of the separation from the rest of the molecule. This epitope might have lost its immunogenicity property. But this epitope is part of this large antigen. Okay, or you can say this epitope is the region, special region in the antigen, which is actually determining the immune response. Okay, तो epitope basically part है एंटीजन का, इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, and this is that small area of chemical grouping on the antigen molecule. अगर definition wise इसको लिखो तो आप you can say this is the small area of chemical grouping on the antigen molecule itself that determines specific immune response.
Okay, and as well as and reacts specifically with antibody. So this is epitope or antigenic determinant. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आपसे मैं ये पूछता हूँ, कल आपने समझा होगा, अगर हम यहाँ से एपिटोप को चॉप ऑफ कर दें, एपिटोप को सेपरेट कर दिए और उसके बाद इस एपिटोप का एंटीजेनेसिटी इज लॉस्ट नाउ, then what this will be termed, what you can say this now, what it has become now, can you call this as hapten? Hapten means incomplete, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, एंटीजन, एंटीजन, यस। incomplete antigen. So Yes, sir. hapten is basically antigenic determinant, but it is not able to elicit immune response because of its low molecular weight. So if a carrier molecule is attached to it, then the molecular weight increases, then that hapten region, which is now present in that complex with carrier molecule, that will function as antigenic determinant now in that whole molecule. So like this you can understand. इतना समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे. हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? यस सर, मेरे साइड ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। ओके, ठीक है। एनीवे, तो क्विकली हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी को बार बार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो उसको अफेक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये दो में से कुछ काम हो रहा है. नंबर 1, फॉरेननेस. फॉरेननेस, number 1 factor. So an antigen must be a foreign substance under a normal circumstances. I'm not talking about abnormal circumstances such as autoimmune disorder. वहां पर एंटीजन जो है सेल्फ एंटीजन है, ऑटो एंटीजन्स, ओके. बट अदरवाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस फॉरेननेस वो किसी मिस्टेक की वजह से है, उस अपने उसके उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, ओके. सो an antigen should be foreign substance, must be foreign. अगर फॉरेन नहीं है तो वह इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं हो करेगा. समझ में आ रहा है? सो एन एंटीजन मस्ट बी फॉरेन substance. Okay, must be foreign substance. कहां पर? In that animal. ठीक है, जिसके अंदर ये घुसेगा, जाएगा, तभी तो एंटीजन कहला रहा है. जिसके अंदर जाएगा उसके लिए वो एंटीजन हो गया, तो जिसके अंदर जाएगा उसके लिए फॉरेन होना चाहिए. फॉरेन दो तरीके से होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे. एंटीजन मस्ट बी फॉरेन सब्सटेंस टू दैट एनिमल टू एलिसिट एन इम्यून रेस्पॉन्स. सेकेंड, molecular size.
ठीक है, ज्यादातर हमारे जो नॉन एक्टिव इम्यूनोजेंस हैं, most of the non active immunogens are more than 14,000 Dalton in molecular weight. Okay. तो जितने भी फॉर एग्जांपल टेटनस का टॉक्सिन जो है, टेटनस का टॉक्सॉइड या एग एल्बुमिन, like these are basically high molecular weight, तो इसलिए इम्यूनोजन फॉरेन भी है और हाई मोलिकुलर वेट भी है, प्रोटीनेसियस भी इन नेचर। सो दीज आर वेरी गुड इम्यूनोजेंस। लेकिन अब बताइए, इंसुलिन एंटीजन हो सकता है? सपोज करो पिग का इंसुलिन डॉग के बॉडी में, will that work as antigen? Tell me anybody. Maybe, sir. Maybe. Yes, sir. Maybe or जो foreign है. maybe or may not. Maybe, yes, sir. Maybe, sir. Maybe नहीं, हाँ सर। सिर्फ फॉरेन ही होना तो काफी नहीं है ना, मॉलिक्यूलर साइज भी अभी बता दिया आपको। इंसुलिन में कितना अमाइनो एसिड होता है? 57 या 51, मैं भूल रहा हूँ। 52 होता है शायद, 52। ठीक है, और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट भी जो है इसी के अराउंड होता है, लेस देन 6,000 डाल्टन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट सफिशिएंट इंसुलिन। ओके, सो इंसुलिन आर ईदर नॉन एंटीजेनिक, ठीक है, तो किसी एक एनिमल का इंसुलिन दूसरे एनिमल के लिए, दूसरे स्पीसीज के लिए, सेम स्पीसीज है, सपोज करो सेम स्पीसीज है, और हम एल्बुमिन प्रोटीन लिए, ह्यूमन ए, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट इज एल्बुमिन, सेम स्पीसीज ह्यूमन ए एंड ह्यूमन बी। ह्यूमन ए का एल्बुमिन, ह्यूमन ए एल्बुमिन, वेदर दिस एल्बुमिन विल बी, सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट है 205 किलो डाल्टन, whether human A का albumin will be antigenic to human B, will that serve as antigen for human B? Tell me, give me the answer of this. दिमाग लगाओ। आवाज आ रही है या कट रही है? क्योंकि चुप रहते तो मुझे नहीं। सर, ये तो बोल रहा है कि 205 से ज्यादा है सर, 14,000 से तो ज्यादा है सर। हाँ, ये तो 205 है किलो डाल्टन, हाँ, तो तो ये एक्ट कर सकता है। तारक का अगर एल्बुमिन ब्लड से हम निकाले और बाबुल के को इंजेक्ट कर दिए अगर, तो क्या बाबुल के अंदर इम्यून रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा? यस कि नो?
यहाँ पर तो सर आप बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्टिव इम्यूनोजेंस आर मोर देन अरे 40,000 तुम्हारा किलो डाल्टन। सुई जो तो उसके अनुसार तो सर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 205 किलो डाल्टन है। अरे अगर भैया ये कम होता 14,000 से तो शायद वो नहीं करता। इसीलिए तो फैक्टर्स बता रहे हैं। हम्म, और सुई एक जगह क्यों अटका हुआ है? सारा डिमांड फुलफिल करेगा तभी ना होगा। क्या वो फॉरेन है? अभी देखो 2 फैक्टर हम बताएं, इसी 2 फैक्टर के आधार पर सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हाँ, फॉरेननेस। अच्छा सारा फैक्टर करना चाहिए, एक से फॉरेननेस काम नहीं क्या? बनेगा। क्या तुम्हारा हम्म, एल्बुमिन बाबुल के लिए फॉरेन होगा? नो सर, वो तो सेम स्पेसीज है, तो अब बताओ। उसमें तो नहीं कर पाएगा। मतलब बताओ। सारा फैक्टर फुलफिल होगा तभी होगा ये चीज, सिर्फ एक अभी से और काम अभी नहीं बनेगा। अभी तो 2 ही में घुसे हो बाबू, अभी 10 गो और फैक्टर है। पहले यस सर, इतना तो समझ लो। ठीक सर। मोलिकुलर वेट सिर्फ साइज ही हाँ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, और भी फैक्टर्स हैं। तो अभी हम 2 फैक्टर बता रहे हैं, उसके आधार पर आपको मैं थोड़ा माइंड ट्विस्टर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप इमेजिन करो कि सेम स्पीसीज का है, अब एल्बुमिन के केस में ये इसके लिए फॉरेन नहीं होगा तो एंटीजेनिक रेस्पॉन्स भी नहीं होगा। क्यों नहीं फॉरेन होगा? क्योंकि ह्यूमन का एल्बुमिन अक्रॉस द स्पीसीज ऑल आर सबका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना? एल्बुमिन तुम्हारा हो चाहे बाबुल का हो, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसलिए हाँ ये होता है होमोलोगस जीन्स हैं, ठीक है? तो स्पीसी अक्रॉस द स्पीसीज एल्बुमिन का जीन इज मोर और लेस कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज के बीच में भी ये मोर और लेस कंजर्व्ड ही है। तो अब एक स्पीसीज के अंदर तो और ज्यादा कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है, तो इसलिए वो सबके इसके लिए ये फॉरेन नहीं है। ओके, अब मान लो कि ह्यूमन ए और बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है। अब इसका ब्लड ग्रुप एंटीजन ए निकाल के हम इसमें डाल दिए, या कहो सीधा हम आरबीसी लिए, इसका लाल रक्त कण, इसके ऊपर है ही एंटीजन ए प्रेजेंट, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए था, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ग्रुप बी, पर्सन बी को दे दिया, मान लो बाय मिस्टेक ट्रांसफ्यूजन हो गया, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या होगा? विल दैट एलिसिट इम्यून रेस्पॉन्स? ह्यूमन ए का आरबीसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बी का सर्कुलेशन में, तो क्या इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट हो गए? आवाज आ रही है? यस सर होगा, यस सर होगा, होगा, क्योंकि वहां पर वो फॉरेन हो जाएगा। यस सर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अलील से मल्टीपल अलील है यहाँ पर जीन का एट द सेम लोकस, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जीन प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो एट द सेम लोसाई, तो यहाँ पर वो फॉरेन हो जाएगा इसके लिए, ह्यूमन बी के लिए, तो वहाँ वो ये डिमांड फुलफिल हो रहा है। अब फॉरेननेस का डिमांड सेम स्पीसीज में भी फुलफिल हो सकता है और अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज में भी फुलफिल हो सकता है, तो इसलिए हम आपको ये उदाहरण से समझा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा फॉरेन मत। तो इसलिए फॉरेन उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फॉरेन है कि नहीं है उसके लिए। ओके, नंबर 3, केमिकल नेचर, ठीक है, या कंपोजिशन। सर तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या वो फॉर मतलब एंटीजन एक्ट नहीं कर पाएगा सर क्या? क्या सवाल पूछ रहे हो?
जैसा कि आप लिख सर, ये जैसे कि आप फैक्टर में बोल रहे फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एंटीजेनिसिटी, तो मॉलिक्यूलर साइज किस तरह से सर करेगा एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन? at the molecular level, you know this already, that B cell receptor and T cell receptor, बेसिकली यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर को अभी आप भूल जाइए, पहले टी सेल रिसेप्टर. टी सेल रिसेप्टर need to have accessory molecules along with it. For a successful T cell interaction, basically T cell receptor interaction with antigen. इस इंटरेक्शन में और भी है एजेंट्स, एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड. सो एपीसी is required. Okay, so antigen need to be big enough so that it should effectively phagocytose and processed inside the antigen presenting macrophage. अगर वो बहुत छोटा है तो इफेक्टिवली फेगोसाइटोज नहीं होगा, उसका इफेक्टिवली वो एपीसी के सरफेस पर प्रेजेंट नहीं हो पाएगा. समझ रहे बात? क्योंकि क्या कर रहा है बेसिकली, एंटीजन बड़ा मॉलिक्यूल है और फेगोसाइटो मैक्रोफाज जो है इन द फेगोसोम, इट इज डिस्ट्रक्टिंग इट, destroying it, hydrolyzing it and breaking it into smaller fragments and smaller molecules. तो ये ऑलरेडी पहले से ही छोटा है एपिटोप, सिर्फ आपने एपिटोप दिया और लो मॉलिक्यूलर वेट है तो ये और ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो गया. तो अब इस यूनिट के बाद जो इसके खंडित पार्ट हैं, इसके पास सीडी बोल रहे हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट determining antigenicity determining region has been lost. So structure of the epitope is lost. बड़ा रहता एंटीजन तो उसमें बहुत सारे एपिटोप्स हैं डिफरेंट तरह के. तो जब वो टुकड़ा प्रोसेस होगा निकल के यहाँ से फ्रेगमेंटाइज होकर एंड इट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल, then there is a high chance of that epitope to get expressed. और अगर यही एपिटोप ही रहता तो ये और टूट जाता तो फिर ये और इसका छोटा टुकड़ा एक्सप्रेस होगा, and that small piece might not have that antigenicity determining region. अभी समझ में आया क्यों molecular weight is important, why molecular size is important? क्योंकि आवाज आ रही है? यस सर. समझ में आया? क्योंकि फेगोसाइटोसिस के दौरान ये फिर और छोटा रहेगा तो और छोटा होगा, टुकड़ा होगा उसका. यस सर. तो और टुकड़ा होगा तो उसका एपिटोप लॉस्ट हो गया, तो अब इंटरेक्ट किससे करेगा, उसका डाइवर्सिटी लॉस्ट हो गया, स्पेसिफिसिटी लॉस्ट हो गया. तो और टी सेल रिसेप्टर जो है वो एक पर्टिकुलर एपिटोप से इंटरेक्ट करने के लिए बना है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी सेल रिसेप्टर. सो इट विल नॉट बी फाउंड, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर साइज इज इंपॉर्टेंट. आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस सर. नो सर. केमिकल नेचर, तो आप देखिए कि
कॉमन जनरल रूल ये है कि मॉलिक्यूल जितना कॉम्प्लेक्स होगा और सब्सटेंस जितना कॉम्प्लेक्स होगा, मोर द कॉम्प्लेक्सिटी of the substance, more will be ठीक है, more will be the chance of, more will be the chance of becoming it immunogenic. The chance of becoming it immunogenic. रुको, अभी देखो 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, मुझे थोड़ा देर का काम भी है, 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर आप लोग ऑनलाइन होना, ठीक है? हाँ आप भी। Okay, sir. ठीक है, कॉल भी आ गया, ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको करूँगा। हाँ हेलो, हाँ आ रहे हैं, 2 मिनट में रुकिए। ये कटने के